Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMOC High School. In our today's video, we are going to start with topic how are clouds formed, which is on page number 140. So I request you all to open your textbooks and come on page 140 so that we can start with our explanation. Page 140, how are clouds formed? Activity 3, take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. This means आपको एक ग्लास लेना है जो आधा पानी से भरा हुआ हो और आपको एक साफ़ कपड़े से जो ग्लास है उसका बाहर का जो आउटर है उसे अच्छे से पोंछ देना है. ऐड सम आइस इनटू द वाटर और अब आपको थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स उस पानी में ऐड करने हैं. वेट फॉर 1 or 2 minutes. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. आपको थोड़ी देर वेट करना है और फिर आपको जो चेंजेस ग्लास के बाहर हो रहे हैं वो ऑब्जर्व करना है. From where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condenses on surface of water. This means कि जो water droplets है वो glass के बाहर कैसे आए. तो जो cold surface है glass का जिसमें ice water है वो जो air है उसको भी क्या कर रहा है, cool कर रहा है. And the water vapor of the air condenses on the surface of glass. We notice this process of condensation in activity 7 and chapter 5. हमने chapter 5 में condensation के बारे में already पढ़ा है. The process of condensation plays an important role in bringing back water to the surface of earth. जो पानी हम पहले से evaporation, transpiration से खो चुके हैं वो पानी हमें वापस लाने में अर्थ पे कंडेंसेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाउ डज इट हैपन? ये चीज़ कैसे होती है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर. हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है कि जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे ही हवा ठंडी रहती है. When the air moves up, it gets cooler and cooler. और हवा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हवा और ठंडी होती रहती है. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. कुछ हाइट के बाद जो हवा होती है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर उसमें होता है वो क्या चालू हो जाता है, इट फॉर्म्स अ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच इज़ नोन एज ड्रॉपलेट्स. It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as clouds. और ये droplets जो हवा में float करते रहते हैं वो हमें कैसे लगते हैं, clouds जैसे, जैसे आपको 14.7 में दिख रहा है. It so happens that many droplets of water come together to form larger size drop of water. हम ऐसा भी होता है कि ये जो droplets होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और साइज में और ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं to become a drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. कुछ ड्रॉप्स पानी के इतना हैवी हो जाते हैं कि वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं. These falling water drops are what we call rain. और ये जो पानी की गिरती हुई बूंदें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, rain. In special condition it may also fall as hail or snow. कभी कभी कुछ कंडीशंस में वो एज अ स्नो या हेल भी गिर सकते हैं. स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के रूप में और हेल का मतलब होता है ओले. इन दोनों के फॉर्म में गिरता है. Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then come back to the ground as hail, rain or snow. थस ये जो पानी है जो वेपर के फॉर्म में हवा में होता है विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू क्लाउड्स एंड देन कम बैक टू ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, हेल और अ स्नो. Now we are going to start with 14.4 and the name of the topic is Back to the Oceans. What happened to the water that rain and snow bring to different regions of earth? दिस मीन्स कि ये जो पानी है जो रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में अलग अलग रीजन्स ऑफ अर्थ में गिरता है उसका होता क्या है.
ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। जितने भी लैंड सर्फेसेस होते हैं हमें पता है कि वो ओशन के अबव ही होते हैं। Most of the water that falls on the ground as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. जितना भी पानी लैंड पे गिरता है रेन या स्नो के फॉर्म में, जल्दी या लेट से वो वापस ओशन में चला जाता है इन मैनी वेज। Snow in the mountain melts into water. This water flows down the mountain in the form of streams and rivers. जो भी स्नो माउंटेन्स पे इकट्ठी हो जाती है वो मेल्ट होके क्या बन जाती है, वाटर। हम सबको पता है कि बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी का फॉर्म ले लेती है। And then this water flows down the mountain in the form of streams and rivers. Some of the water that falls on land as rain also flow in the form of river and streams. और जो पानी है बारिश का जो लैंड पे गिरता है वो स्ट्रीम्स या रिवर्स के फॉर्म में भी फ्लो करता है। Most of the rivers cover long distance on land and ultimately falls into a sea or an ocean. और जो रिवर्स है काफ़ी सारी रिवर्स है जो बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर करती है, अल्टीमेटली वो सारा पानी कहाँ जाता है, सी या ओशन में। However, water of some rivers flow into lake. और जो थोड़ा कोई रिवर्स का जो पानी है वो लेक्स में फ्लो होता है। The rain water also fills up the lakes and ponds. जो रेन वाटर होता है वो लेक्स और पॉन्ड्स भी फिल करता है। A part of the rain water gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. जो थोड़ा बहुत रेन वाटर होता है ग्राउंड उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, इट गेट डिसअपियर। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. और कुछ पानी जो फील्ड्स में या पोर्ट होल्स में जो रह जाता है वो वापस से एयर में वेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और बचा हुआ ग्राउंड के अंदर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और ये जो ग्राउंड के अंदर सीप हो जाता है वो हमारे लिए एज अ ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, जो ओपन वेल्स होते हैं दैट हैज बीन मेड फॉर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मेनी लेक्स एंड वेल, जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी सारे लेक्स और वेल्स का वाटर सोर्स है। It is also this ground water which is drawn by hand pump or a tube well. जो ground water है उसे hand pump या tube well के यूज़ के थ्रू भी बाहर निकाल के यूज़ किया जा सकता है। The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this ground water. जिस एरिया में ज़्यादा हैंड पम्प्स या ट्यूबवेल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे हमें अंडरग्राउंड वाटर ढूंढने के लिए उतना ज़्यादा डिग करना पड़ता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम। जितना ज़्यादा आप लोग अर्थ डिग करोगे और ग्राउंड वाटर यूज़ कर लोगे, जितना लॉस होगा हमें ग्राउंड वाटर में वो चीज़ उतनी ही प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए प्रूफ होगी। पहेली wants to share a concern with you. Now Paheli wants to share something with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rain water flows away quickly. ऐसे एरिया जहाँ पे जो लैंड है उसमें या तो थोड़ा या बिल्कुल वेजिटेशन नहीं होता है, वो रेन वाटर क्या होता है, it flows quickly. Flowing rain water also takes the top layer of the soil away with it. और ये जो flowing water है वो अपने साथ जो soil है which is top layer वो भी साथ में flow करके ले जाता है। There are few areas where most of the land is covered with concrete. अभी भी थोड़ा एरिया ऐसा है जो किससे कवर्ड है, कंक्रीट से।
This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. और इसकी वजह से जो रेन वाटर है वो ग्राउंड के अंदर बहुत कम जाता है और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करता है. Now we know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. अब हमें पता है कि जो पानी वापस अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल, वो कहाँ पे जाता है? वापस से ओशंस में. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, returns as hail, rain or snow and finally goes back to the ocean. लाइक जो पानी ओशंस में होता है और सर्फेसेस पे होता है वो वापस से क्या होता है? एयर में एज अ वेपर कन्वर्ट होता है, वापस से एयर या स्नो या हेल के फॉर्म में नीचे आता है एंड फाइनली वापस से ओशंस में जाता है. The circulation of water in this manner is known as water cycle. और जो पानी का सर्कुलेशन है जो इस मैनर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल, जो आपको 14.9 में दिखाया गया है. This circulation of water between ocean and land is a continuous process. और ये जो पानी का सर्कुलेशन है जो ओशन और लैंड से रिगार्डिंग है वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है. दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. और इसकी वजह से जो पानी का सप्लाई है वो हमारे लैंड पे बना रहता है. आप नीचे फिगर में देख सकते हो पानी माउंटेन्स पे आ रहा है, अगेन इट इज़ गेटिंग फ्लोइंग डाउन एंड कमिंग इनटू रिवर एंड देन ओशन एंड अगेन वही पानी वापस से वेपर के फॉर्म में वो वापस से जा रहा है, क्लाउड बन रहा है एंड रेन आ रही है. ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती ही रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस टॉपिक अप टिल हियर. So students, this is all for today's video. We will continue with our remaining topic in our next video. Till then, keep reading, keep completing your books, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.